welcome to Biology Central. This is Vijay Punya and we are now going to study the concept of homologous pair of chromosome. So whenever we talk about the chromosome homologous pair, every cell of human body have 23 pairs, or we can say 46 chromosomes. Why we call them 23 pairs? The reason behind this is during the gamete formation, when the gamete fuse and zygote forms, one from the mother and one chromosome, the father, is transferred inside the newborn, and these chromosomes in G1 phase are like this. So the concept of homologous chromosome is whenever any gene present on any locus of homologous chromosome, the other copy of that homologous chromosome will have that same gene on that same locus. Okay, so locus is the position of any gene on the chromosome. ठीक है जी. तो ये जीन जो है, ये और ये दोनों जीन्स एक दूसरे के वेरिएंट्स हैं. इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम हो सकते हैं, बट इन दोनों का जो बेसिक कैरेक्टर रहेगा वो सेम रहेगा. सपोज दिस कैन this on this area, this gene can give a red color character of hairs, but this can give the black hairs, but both of the genes are of same character which are hair color. ठीक है. तो ये G1 फेज से ये सेल जिसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, जब G2 फेज में कन्वर्ट होता है तो S फेज जहाँ बीच में DNA रेप्लिकेशन होगी, और उसके बाद जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज 2 क्रोमोसोम 4C DNA. 4C DNA. Now C is chromatids. This is one chromatid, this is second chromatid, this is third chromatid, and this is fourth chromatid. Now these 4 are chromatids of one homologous pair, but the sister chromatids are 1 and 2. Now these two are sister chromatid because they are connected from one centromere, and on the other hand the chromatid 3 and chromatid 4 are sister chromatids to each other because they are connected to one centromere. But the chromosome 1 and chromosome 2, this 2 and 3 sister chromatid are नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टू ईच अदर. ठीक है. ये जो 2 नंबर का क्रोमेटिड है और जो 3 नंबर का क्रोमेटिड है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं एक होमोलोगस पेयर में. ठीक है. नाउ लेट्स सी अबाउट द क्रोमोसोमल मूवमेंट इन द मियोसिस, एंड दीज क्रोमोसोमल मूवमेंट्स आर ऑफ सर्टेन काइंड. द DNA, as we have studied, the chromosomal shape in the G2 phase is like this. And whenever the homologous pair of chromosome from G2 phase through M phase cytokinesis happens, one chromosome from each pair will move into the cell, and there will be a division of chromosomes in half number. And as you can see on the lower side here, the chromosomes present in G2 phase is 23 pairs or 46 chromosomes and 92 DNA. Now this condition is of 2 DNA condition and also called as 4C condition. So this M1 phase, which is actual reduction phase, have 23 chromosomes and 46 DNA. Both of these two entities have reduced into half. Taking M2 in consideration, this daughter chromatid, sister chromatid, and this sister chromatid, both of these will disintegrate from each other, and there will be a distribution of one sister chromatid from each chromosome into the final 4 gametes. Now these 4 are gametes. Okay, so M2, the cells which are final haploid cells will have 23 chromosomes and 23 DNA of this condition, and there is a reduction of 1/2 in the chromosome number and 1/4 in the DNA amount. So as we have studied about the chromosomal movement in meiosis, now we can see that M1 and M2 transition phase. Now we all have studied that M1 से M2 में जब भी सेल ट्रांसफॉर्म करता है, सेल ट्रांजिशन करता है, तो उस वक्त डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है,
ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, बिकॉज देयर इज अ फेज विच इज नोन एज रेस्टिंग स्टेज, ऑल्सो नोन एज इंटरकाइनेसिस, एंड दिस इंटरकाइनेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेज, इसे इंटरफेज 2 भी बोलते हैं। ठीक है, इस इंटरफेज 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी? एक डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज में नहीं होता, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन M1 से पहले S फेज में कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टीलोफेज 1 जैसे ही कंप्लीट होता है। टीलोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डीएनए के ऊपर से, क्रोमोसोम्स के ऊपर से बनेगी। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीकंडेंसेट भी होंगे और फिर जो सेल है वो M2 में ट्रांजिशन शुरू करता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें करने के लिए वो है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो नॉर्मली जब S फेज में डीएनए और सेंट्रियोल दोनों डबल होते हैं, तो इस टाइम में दोनों की जो रिएक्शन है वो कपल्ड होती है, which means as soon as the DNA is duplicating, the centriole will also duplicate and DNA goes 2x and the centriole will always go from 1 to 2 centriole. Okay, and this is very much responsible for separating the DNA. Either it can be from homologous chromosome, एक homologous chrome को एक सेल में और दूसरे homologous pair के दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे सेल में लेकर जाने के लिए, या एक किसी भी क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इस इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होगी और जो सेंट्रियोल है वो एक से बन जाएंगे 2। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि सेंट्रियोल में डुप्लीकेशन जो है वो उसका मतलब क्या है और वो किस तरह से होती है। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रियोल जो है जैसे ही एक इस पोल पे चला जाता है और दूसरा इस पोल पे चला जाता है, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बाद M1 कंप्लीट होने के बाद जो ये 2 सेल बने हैं इनके अंदर एक एक सेंट्रियोल होगा। ठीक है, और ये एक एक सेंट्रियोल इज़ नॉट इनफ, क्योंकि अब की बार जो डीएनए है वो इस शेप का है और उसे इस शेप में कन्वर्ट करने के लिए, विच मीन्स द सेंट्रियोल विच इज़ गोइंग टू मूव फ्रॉम 2 सिस्टर क्रोमेटिड कंडीशन जो ऐसी होती है से लेके इस कंडीशन तक आने के लिए एक एक सेंट्रियोल एक्स्ट्रा चाहिए। ये थी बात सेंट्रियोल की। तो इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें 3 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और इसके साथ साथ ये जो सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल ये भी डबल होके एक एक्स्ट्रा सेंट्रियोल दोनों सेल्स में बना लेगा, जिसकी वजह से अगले जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं उनके अंदर भी एक एक सेंट्रियोल बिल्कुल इजीली प्रेजेंट हो सकता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है 2 सिस्टर क्रोमेटिड कंडीशन, यानी इस कंडीशन को इस कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी बात आपके पास सेंट्रियोल्स की। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और देखी जाती है, स्टडी की जाती है ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन, जिसकी बात हम करेंगे फर्टिलाइजेशन पढ़ते हुए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दिस इज विजय पुनिया from Biology Central and I want to thank you for watching the video. Just make sure to like, subscribe and comment and just suggest me the topic for my next series. Thank you.